کا جو ماحول ہے، کسی انسان سے آپ اپنی بات رکھیے، کہیے، روزے کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، دین اسلام کے تبلیغ کے تعلق سے، اس کے نشر و اشاعت کے تعلق سے، تو وہ انسان ہم کو پلٹ کر جواب دیتا ہے، پوائنٹ کی بات ہے۔ کسی انسان سے کہیے کہ آپ 5 وقت کی نماز نہیں ادا کر پاتے ہیں، تو ہفتے میں جمعہ کا دن پڑتا ہے جسے سید الایام کہتے ہیں۔ ہفتے کے دنوں میں جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ آپ اس سے کہیے کہ کم از کم آپ جمعہ کی نماز ادا کر لیا کریں۔ وہ انسان آپ کو پلٹ کر جواب دے کر اپنا راستہ طے کر لیتا ہے۔ کسی انسان سے آپ کہیے کہ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، رب کی کچھ عبادت بھی کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہوا کرو، اس کی بارگاہ میں رو گر گڑاؤ، اس کا ذکر و اذکار کرو، اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرو، نہ جانے کب سانس ہمارے جسم سے رخصت ہو جائے، جان نکل جائے، روح جدا ہو جائے، تو انسان کیا کہتا ہے؟ میں اپنی بات نہیں پیش کرتا، آج کل جو معاشرے میں چل رہا ہے وہی بات۔ وہ انسان کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہوگا وہ دیکھیں گے، ابھی ہم اپنا کام کریں گے۔ لیکن قرآن پاک کا ارشاد ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ کے اس کلام نے کہا جس کلام کے ایک زیر و زبر کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس کے ایک نقطے کو نہ ماننے والا وہ بھی کافر۔ اب آپ فیصلہ کرو، سوچو، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ کہ جب اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، اسی قرآن کا ارشاد ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کرنے والا قیامت کے دن اس کا اجر پائے گا، اس کا بدلہ پائے گا۔ اور اسی قرآن کا یہ بھی ارشاد ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر گناہ کرنے والا انسان قیامت کے دن عذاب میں مبتلا ہوگا، سزا پائے گا، قرآن نے کہا۔ اور ایک طرف کہا رب کی پکڑ بہت سخت ہے، کتنی سخت ہے؟ اتنی سخت ہے کہ ذرہ برابر گناہ کرنے والا شخص بھی عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ جب انسان ذرہ برابر گناہ کرنے سے اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، تو جو لوگ نماز و روزہ، تمام احکام شرعیہ کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن کیا ہوگا وہ حضرات آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ رب کی پکڑ قرآن مقدسہ نے جو بیان کی، اس کو اپنے ذہن میں ایسا نشین کر لیں، ایسا بٹھا لیں کہ قیامت کے دن ذرہ برابر گناہ کا بھی ہم کو عذاب ملے گا، ہم اس سے بچ نہیں سکتے، ہم اس گناہ کے بدلے سزا پائیں گے۔ اور اگر ذرہ برابر نیکی کا کام کیے ہوں گے
तो रब ताला उसका बदला अता करे। आजकल जो लोग सोचते हैं कि रोजा नमाज को तर्क करने के बावजूद हम जन्नत में जाएंगे, हम सुन्नी हैं, सरकार के मानने वाले हैं, उनके उम्मती हैं, तो सरकार हमारी शफाअत कराए, सरकार हमारी मग़फ़िरत करवाएंगे, बख्शिश करवाएंगे। तो क्या आपका इस पर यकीन है कि आप जन्नत में जाएंगे? आपकी शफाअत सरकार करेंगे, आप जन्नत में जाओगे, आपके नामाए अमाल में जो नेकियां होंगी और जो गुनाह होंगे उनका अजर सवाब जो होगा उसके बदले आप जन्नत में जाओगे? बिल्कुल यकीन नहीं रखते। क्यों? इसलिए कि जिस रब्बे कायनात के हबीब ने इरशाद फरमाया कि हर उम्मती की मैं शफाअत करूंगा, अगर उसके दिल में जर्रा बराबर मेरी मोहब्बत होगी तो मैं उसकी शफाअत करूंगा। उसी हबीब के रब का इरशाद है कि तमाम तर लोगों के नामाए अमाल जब खुलेंगे, तौले जाएंगे, तो जिस तरह से उनका अजाब और उनकी नेकी, उनकी बदी होगी, उसी तरीके से उनको जहन्नम में भेजा जाएगा। और जहन्नम में कई सौ बरस जलने के बाद सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु तस्लीम अपनी रहमत से उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डालेंगे। लेकिन पहले क्या होगा? पहले तो आपको जहन्नम में जलना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि आपने अजाब का काम किया, दुनिया में आपने गुनाह का काम किया, दुनिया में जब थे तो अल्लाह की इबादत कभी नहीं की, अल्लाह की जिक्र अज़कार कभी नहीं किया, उसकी हम्दो सना कभी नहीं की, हमेशा तर्क करते रहे, गुनाह पर गुनाह करते रहे। वो गुनाह आपके नामाए अमाल में लिखा गया और बरोज़े महशर जब आपके गुनाहों का वो दफ्तर रब के सामने खोला गया, उसी गुनाहों के एवज में बदले में रब कायनात का हुक्म हुआ कि मेरे इस बंदे को ले जाओ जहन्नम में और इतने बरस तक अजाब में इसको मुबतला कर दो। अब आप सोचो जन्नत में आप कब जाओगे? पहले तो हुक्म ये होगा कि इस शख्स को जहन्नम में ले जाओ, इतने साल तक ये सजा काटेगा। अब आप यकीन से कैसे कह सकते हो कि हम जन्नती, हम जन्नत में जाएंगे? ये तो सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु तस्लीम का करम फजल है, मेहरबानी है, उनकी रहमत है कि आकाए करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जब उनकी दरियाए रहमत उनका जोश में आएगा, आकाए करीम रब ताला की बारगाह में सिफारिश करेंगे, रब ताला की बारगाह में दुआ गो होंगे, मौला करीम मेरे इस बंदे ने दुनिया में जब ये था तो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करता था, मेरा नाम लिया करता था, मेरी मजलिस में बैठा करता था, मेरे मानने वालों के हमराह रहा करता था, उलमाए किराम से मोहब्बतें किया करता था। ये तमाम बातें जब आपके अंदर मौजूद रहेंगी तो सरकारे दो आलम अपनी रहमत से आपको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दें। लेकिन आपको उस अजाब से होकर गुजरना, रब के कलाम का जो इरशाद है, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, उस पकड़ में हमको और आपको आना, हम उससे नहीं बच सकते। वो आखिरत है, ये दुनिया। दुनिया में इंसान झूठ बोल सकता, इधर उधर की बातें लगाकर बजाकर निकल सकता, होशियारी दिखा सकता है, सहन इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मैदान क़यामत एक ऐसा मंजिल है, एक ऐसा सफर है जिस सफर में आपकी जबान पर रब्बे कायनात
खामोशी का ताला लगा देगा। आपके जिस्म के तमाम आज़ा गवाही देंगे, ऐ रब्बे कदीर, जब ये इंसान दुनिया में था फला मकाम पर मेरे साथ इसने ऐसा ऐसा गुनाह किया है। हाथ गवाही देंगे, ऐ रब्बे कायनात, ये शख्स फला मकाम पर फला दिन फला महीने में इस शख्स ने इतने इतने बुरे काम हाथों से करवाए हैं, ऐसा ऐसा काम गुनाह का पैर के जरिए चलकर इस इंसान ने किए हैं। अब आप ये बताओ कि जब आपकी जबान बंद रहेगी, आपकी जबान खामोश रहेगी, ताला लगा होगा, तो आप वहाँ तो झूठ नहीं बोल सकते, आप वहाँ इधर उधर की बात तो नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हो? आपके जिस्म के जो आज़ा है वो सिर्फ आपके बदले में आपके खिलाफ वो तमाम आज़ा आपके गवाही देंगे, और उन्हीं की गवाही रब ताला सुनेगा, और उसी गवाही के एवज में आपको जन्नत और दोज़ख के फैसले से आगाह किया जाएगा। आप इन तमाम बातों को आप अपने जहन में बगौर सुनकर बिठाएं और सोचें कि रब्बे कदीर ने हमको दुनिया में किस लिए भेजा और हम कर क्या रहे हैं। रब्बे कदीर ने हम तमाम हज़रात को दुनिया में इसलिए भेजा हम उसकी इबादत करें, उसकी नेमतें खाएं पिए, फायदा उठाएं उसकी नेमतों से, और शुक्रिया के बदले उसकी नेमतों का शुक्रगुजार होकर करके रब ताला की बारगाह में इबादत करके सजदा करें, जिक्र अस्कार करें, तस्बीह और तहलील बयान करें, उसके हबीब पाक की हम्दो सना करें। याद रखो, आपके जिस्म से आपकी रूह कब जुदा हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इस पर बिल्कुल यकीन न रखो कि आज नहीं कल हम नमाज पढ़ लें, इबादत कर लेंगे, महफिल सजा लेंगे, शिरकत कर लेंगे, जिक्र अज़कार कर लेंगे, तस्बीह और तहलील बयान कर लेंगे, हमदो सना कर लेंगे। ऐसा नहीं, जो मौका आपको मिला है उसी को गनीमत जाना, उसी को कीमती जाना है, उसी को अनमोल जाना है। 1 घंटे का वक्त आपके पास है, उसी को कीमती जाना है, उसी में रब की इबादत कर लें, उसी में रब की बारगाह में सजदा कर लें, उसी में